morning, students. I hope you all are fine at home. Stay connected and stay focused at study. Today, as you all know that, I have explained the first chapter of this book. What was the first chapter? For the love of trees, section A. Today we will see the section B. This is a piece of peace. Now see the pronunciation of these two words are same. Piece of peace, but the spelling is different. What is the meaning of peace? Crumb, tukda. And what is the meaning of peace? Serene, shanti. These are the two differences we see here. Actually, in this chapter we will discuss about the Antarctica. Have you ever heard the name of Antarctica? The coldest region is to be considered in the world, where life does not exist. Yes, people go there just for a short trip, but they do not live there permanently, because it is not possible for their body to adopt the atmosphere. That's why they don't live there. It's a very cold region. People go there, explore, have fun and frolic, but do not live there permanently. Now see, what is the reason of Antarctica to be given in this chapter, and what do we get from this chapter, and what are the explanations to be given about Antarctica. Over 200 million years ago, Antarctica was joined with Australia, Africa, South America, India and New Zealand in the supercontinent Gondwana. 200 साल 200 million years ago जो आपका अंटार्कटिका था, वो ज्वाइन था ऑस्ट्रेलिया से, अफ्रीका से, साउथ अमेरिका से, इंडिया से और न्यूजीलैंड से. इन सब से वो ज्वाइन थे, एक सुपर कॉन्टिनेंट बना रहा था. बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट हो गया था. अंटार्कटिका इन सभी लोगों से जुड़ा हुआ था. अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, millions of years later, this supercontinent broke up and the present day continents began to form. ड्रिफ्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कॉन्टिनेंटल हुआ करते थे, बिलियंस ऑफ ईयर्स लेटर, ये जो बड़े बड़े जो सुपर कॉन्टिनेंटल जो हुआ करते थे, जो कई देशों से, कई कंट्रीज से मिलकर बना करते थे, अब प्रेजेंट डे में क्या है कि वो उन कंट्रीज से अलग हो गए हैं, टूट गए हैं. उनमें से आपका एक अंटार्कटिका भी है, जो उन कंट्रियों से ब्रेकअप हो गया, टूट गया और अपने लिए वो एक कॉन्टिनेंट बना लिया है, सबसे अलग होगा. दिस रिजल्टेड इन द ओपनिंग ऑफ द ड्रेक पैसेज, जिसकी वजह से अब लोग वहां पर जाना शुरू कर दिए. उसका अपना एक अलग रास्ता, उसने अपना एक अलग रास्ता निकाल लिया है. After making its final detachment from the Australian continent about 40 million years ago, Antarctica settled into its present polar position and began to cool dramatically. 40 million years ago, अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया से अलग हो गया. जब अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया से अलग हो गया, तो फिर जब वो डिटैच हुआ, जब वो अलग हुआ, तो अंटार्कटिका ने अपना अलग एक पोलर पोजीशन बना लिया. वर्ल्ड में अपना एक अलग पोलर पोजीशन बनाया और वो लगातार
ड्रामेटिकली कॉन्टिन्यूसली वो कूल होता रहा, ठंडा होता रहा। इसलिए मैंने आपसे बताया कि वो कोल्ड रीजन है और वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। लोग परमानेंट वहाँ नहीं रहते हैं, 1 महीने 2 महीने 3 महीने रहेंगे फिर चले आएंगे। वो एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं फिर चले आते हैं। नाउ लेट अस रीड एंड रिजॉइस। लेट अस सी द चैप्टर। Women have always been enthusiastic about exploring and discovering. मनुष्य के अंदर वो क्यूरियोसिटी है, वो उत्सुकता है, तो हमेशा वो एक्सप्लोर करता रहता है चीज़ों को, नई नई जगहों पर उसकी जाने का एक शौक होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, जो इसका क्यूरियोसिटी है। गॉड गिफ्टेड है, इट्स गॉड गिफ्टेड, इट्स गिवन बाय गॉड। ह्यूमन लव टू गो द प्लेस दे डोंट नो। Antarctica seems to be a frozen piece of land with no permanent human settlement, and yet permanent damage is being done to a place which is peacefully, beautifully, literally untouched by human activity. अंटार्कटिका एक फ्रोजन पीस ऑफ लैंड जमी हुई है, जहां तक आपकी कहना में नजर जाएगी। As far as you can see, you will see the frozen land over there. विदाउट अ सिंगल ह्यूमन बीइंग, एक भी इंसान आपको वहां नजर नहीं आएंगे। विद नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट नहीं है, जाते हैं लोग चले आते हैं। लेकिन परमानेंट सेटलमेंट ना होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ नॉट बीइंग परमानेंट सेटलमेंट, यू कैन सी द परमानेंट डैमेज टू बी डन बाय नेचर। नेचर के द्वारा परमानेंट डैमेज वहां पर हो रहा है। ह्यूमन बीइंग तो नहीं जा रहे उन्हें डैमेज करने के लिए, लेकिन वो परमानेंट डैमेज भी हो रहा है, टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। नाम सुना होगा। वहाँ की जो आपकी आइस है वो मेल्ट हो रही है, पिघल रही है, जिससे वो क्या फॉर्म कर रही है, वाटर के फॉर्म में आ रही है, जिससे आपकी बहुत जगहों पर फ्लड आता है और बहुत सी क्या नाम है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। जो एक वंडर हाउ, मतलब आश्चर्य होता है, वियर्ड फील होता है, ऑकवर्ड फील होता है कि वहां पर ह्यूमन बीइंग भी नहीं है, फिर भी परमानेंट डैमेज वहां पर हो रहा है। कैसे हो रहा है, ये बात सोचने पर हमें मजबूर कर रही है। Captain Cook was the first person to cross the Antarctic Circle. Cook's expedition sailed 500 km and penetrated further south than anyone could. There was a man named Captain Cook. कैप्टन कुक नाम का एक आदमी था, पहला ऐसा आदमी था जिसने अंटार्कटिक को क्रॉस किया, इसके सर्कल में वो एंटर किया। कैप्टन कुक वाज द फर्स्ट मैन टू एंटर द सर्कल ऑफ अंटार्कटिक। और ये कुक की 109 एक्सपीडिशन थी, उसकी जो कौन सी जर्नी थी, उसने 108 जर्नी को कवर कर ली थी। ये इसकी 109 एक्सपीडिशन थी, जर्नी थी। ये जर्नी कहाँ की थी? अंटार्कटिका की थी। और वो 500 किलोमीटर उसने डिस्टेंस को कवर कर लिया था अंटार्कटिका में, साउथ की तरफ। तो शायद इससे पहले किसी ने कवर किया था। Despite his first remarkable circumnavigation of Antarctica in 1773, Cook failed to find the southern continent itself. Circumnavigation means होता है the act of sailing around, जो वहाँ पर चल रहा है, जो expeditions कर रहे हैं, यात्रा जो ट्रेवल कर रहे हैं, जो डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, उसी को सर्कमनेविगेशन कहते हैं। ठीक है। 1773 की ये बात है। 1773 में जब कैप्टन कुक ने उसके अंटार्कटिका के सर्कल में जब वो एंटर किए थे, तो उस कॉन्टिनेंट को इससे पहले किसी ने भी नहीं देखा था। उन्हें खुद नहीं पता था कि ये अंटार्कटिका है। उन्हें खुद नहीं पता था, वो लॉस हो गए थे, खो गए थे वहां पर।
ढूंढ भी नहीं पाए थे। क्या कुक सिंपली हैड पुअर लक, लक उनके साथ नहीं था। अपॉन लिविंग द फ्रोजन सदर्न सी फॉर द लास्ट टाइम कुक रोड, और जब उन्होंने एक्सपीडिशंस कंप्लीट कर ली, यात्रा अपने उन्होंने क्या नाम है कंप्लीट कर ली, जब वो लौट रहे थे तो उन्होंने कुछ बातें बताई। क्या कहा उन्होंने? थिक फॉग्स, स्नो स्टॉर्म्स, इंटेंस कोल्ड एंड एवरी अदर थिंग दैट कैन रेंडर नेविगेशन डेंजरस one has to encounter, and these difficulties are greatly heightened by the inexpressible horrid aspect of the country, a country doomed by nature never once to feel the warmth of the sun's rays, but to lie forever buried under everlasting snow and ice. कितनी खूबसूरत बात लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि वहाँ पर थिक फॉग्स, वहाँ पर जो फॉग थे, जो कोहरे वहाँ पर थे बहुत ही थिक थे, वन कैन नॉट सी जस्ट बिकॉज ऑफ थिक फॉग्स, इतने घने कोहरे वहां पर थे कि एक इंसान कुछ भी नहीं देख सकता था। स्नो स्टॉर्म्स, बर्फ की क्या नाम है, बर्फ की तूफान जो वहां पर थे, बर्फ के तूफान थे। हवाएं तो थी साथ में, लेकिन उसके साथ साथ क्या थे, बर्फ भी उड़ रहे थे। इंटेंस कोल्ड, बहुत ठंड था, यहाँ तक कि इतना ठंड था, और बर्फ के जो तूफान जो आए हुए थे उनकी वजह से वो अपने नेविगेशन में वे रास्ते बड़े खतरनाक हो गए थे, जिससे वो भटक गए थे, काफी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे, वो डिफिकल्टीज को फेस कर रहे थे जब वहां से वो वापस लौट रहे थे। One has to encounter and expressive horrid aspect of the country. किसी भी ये जो हॉरिड एस्पेक्ट, इतना खौफनाक जो मंजर बना हुआ था, शायद ही उन्होंने अपनी लाइफ में कभी फेस किया था। और ये जो चीजें वहां पर अकर्ड हो रही थी, जो हो रही थी, वो कोई इंसान नहीं कर रहा था, बल्कि वो तो नेचर के द्वारा उसे डूम किया जा रहा था, गिराया जा रहा था, तबाहियां मचाई जा रही थी। टू क्रिएट हैवॉक, टू क्रिएट हैवॉक, तबाही मचाना। तो तबाही किसकी वजह से मच रही थी? नेचर के द्वारा। और वहां पर कभी भी शायद सन की कभी रेस वहां पड़ी थी, मतलब आपको वहां पर गर्मी का एहसास कभी नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है, जहां पर इतनी ठंड पड़ रही है वहां गर्मी का एहसास क्या होगा? सन की रेज भी वहां पर कोई इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं डाल रही थी। क्यों? क्योंकि वहां पर हर जगह पर क्या था, स्नो था, आइस था, हर जगह पर बरेड थे, ढके थे। ओके स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो। अब तब तक के लिए क्या करिए, इसको आप मेरी वीडियो को दोबारा देखिए, रिपीट करिए, इसको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, एंड ट्राई टू फॉर्म क्वेश्चंस, try to understand the hidden meaning and the difficult meaning which has been given in the chapter, then you will be able to understand। पढ़ाई को आप इंटरटेनमेंट की तरह नहीं बल्कि सीरियस लीजिए। See you tomorrow।